Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your English grammar teacher, Miss Faraj Shine. I hope you all are fine, safe and healthy at home. Today, I am going to teach you unit number 28. Unit number 28. Unit number 28, Pigtail. We will learn today introduction of poet, learn poem, summary of the poem, questions, answers. Let's introduction of the poet. William Makepeace Thackeray, 18 July 1811, 24 December 1963, was an English novelist, author and illustrator who was born in India. He is known for his historical works. His 1848 novel, A Pandemic Portrait of British Society, and 1844 novel The Luck of Brave London, which was adapted for 1975 film by Stanley. Okay, students, let's read the poem Pigtail. There lived a sage in days of yore, and he a handsome pigtail wore, but wondered much and sorrowed more, because it hung behind him. He mused upon this curious case, and swore he would change the pigtail's place, and have it hanging at his face, not dangling there behind him. Says he, the mystery I have found, I will turn me round. He turned him round, but still it hung behind him. Then round and out and in, all day the puzzle sage did spin. In vain it mattered not a pin, the pigtail hung behind him. And right and left and round about, and up and down and in and out, he turned, but still the pigtail stout hung steadily behind him. And though his efforts never slack, and though he twist and twirl and tap, alas, still faithful to his back, the pigtail hangs behind him. Now, let us look at the central idea of the poem. The Pigtail, written by William Makepeace Thackeray, is an amusing poem which revolves around a foolish act done by a sage. Here the word sage is used in an ironical sense to refer to a person who is dull-witted. Throughout the poem, the poet laughs at this wise man who does not have any practical knowledge, but uses theatrical knowledge and does foolish things. Usually sages are wise men, and we expect them to do wise things. But this sage is worrying over a pigtail, which is utterly absurd. The illogical and the irrational behavior of the sage creates humor, and we cannot help agreeing that the poet is making fun of the sage. The poetic devices like irony, alliteration, and personification have been used in the poem. The theme of the poem is how learned men lack practical knowledge. Now let us look at the explanation of the poem stanza-wise. In the first stanza, the poet talks about a wise sage who lived during old age and had a pigtail. The sage, however, was worried that his pigtail was at the back of his head and not on his face. The irony is shown in the fact that the sage, although being wise, had a foolish wish. In the second stanza, the poet tells us that the sage was quite adamant about changing the place of his pigtail and thought over it. He swore that he would not let it dangle behind him. In the third stanza, the sage believed that he had finally found the way to change its place. He turned round and round, but to his dismay, the pigtail was still at its own place. So he stomped on the ground with rage because of his failure. In the fourth stanza, the poet says that the sage still kept on trying to change its place, but all in vain, as nothing happened at all. In the next stanza, the poet says that the sage still did not lose hope and kept on going left and right, up and down and in and out, but the pigtail hung where it had been. In the last stanza, the poet tells us that although the sage twisted, twirled and tapped, but the pigtail stubbornly stuck to its place, leaving the sage aghast. Now, let us check your understanding of the poem through this question. Good morning, students. I hope you all are fine. So today I am going to teach Unit number 28, Pigtail. Now, everything about this chapter. You just have to keep patient and
listen to me, okay? Just listen to me very carefully and I'm going to teach you all of this. Now first we will start by understanding the meaning of this title, the pigtail. What is the meaning of the word pigtail? A pigtail is a long tail-like structure made out of hair. Okay, in this chapter you can see that there is a picture given of a person who has a long ponytail behind his head. You can see this. Yes, now this ponytail, which is called as pigtail, is what this poem is all about. Okay, we are going to understand this poem by reading each line given in this poem. Okay, now you have to know the name of the writer of this as well, कि हमारे चैप्टर का नाम पिगटेल है. पिगटेल का मतलब टेल जैसा स्ट्रक्चर जो बालों से बनाया जाता है, जिसको हम आम भाषा में चोटी कहते हैं. ठीक है, आप अगर समझ पा रहे हैं तो. और आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इस इंसान के पीछे एक लंबी सी चोटी है और यही हमारे चैप्टर का टाइटल है. So now we are going to start this. Just have to listen to me quietly. Of course you have to be quiet. I'm not able to hear your voice, so even if you talk, it's okay, but listen to me, okay? And just understand everything. Now I'm going to start with the first sentence. There lived a sage in days of yore. There lived a sage. What is the meaning of the word sage? Sage का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, बहुत ही ज़्यादा, जिसको किसी नॉलेज का कोई भी कमी ना हो. तो अभी जो आपको एक सेज बोला जा रहा है पहले ही सेंटेंस में, इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे इस पोम का जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है एक सेज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा बुद्धि हो. तो वो सेज रहा करता था इन डेज ऑफ योर. डेज ऑफ योर मतलब पुराने दिन, जो बीते हुए दिन है, बहुत समय पहले कौन रहा करता था? एक सेज रहा करता था, एक बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था. ये पोम की शुरुआत उसी तरह है जैसे कहानियों की शुरुआत होती है ना, कि बहुत समय पहले, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक राजा रहा करता था. बस उसी तरह से शुरुआत है हमारे इस पोएम का भी. और इसका जो मेन कैरेक्टर है हमारा सेज, उसको ऐसे ही लिखा गया है कि बहुत समय पहले एक सेज रहा करता था. ठीक है. And he handsome pigtail wore. और उसके पास क्या था? एक हैंडसम पिगटेल. हैंडसम का मतलब क्या? बहुत ही अच्छा दिखने वाला. पिगटेल मीन्स बहुत ही अच्छी चोटी थी उसकी. A long tail of hair that he has behind his head. You can see it in the picture also that he has head. You can see it in the picture also that he has a long tail of hair. But wondered much and sorrow more. This person, the sage, wondered much. Wonder का मतलब क्या होता है? ये wonder शब्द का past tense है. wonder का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, विचार करने के नजरिए से किसी चीज के बारे में सोचना. बट wondered much, काफी सोच रहा था. and sorrowed more, और बहुत ज्यादा सोचने से ज्यादा उसको बहुत ज्यादा क्या था? दुख था. किस बात का दुख था? Because it hung behind him, क्योंकि वो चोटी कहाँ थी? उसके पीछे थी. इस बात का उसको बहुत ही दुख था. But wondered much and sorrowed more because it hung behind him, क्योंकि वो चोटी उसके पीछे थी, उसकी जो पिगटेल थी वो उसके पीछे थी, इसलिए उसको बहुत दुख था.
आप इतना तो फर्स्ट पैराग्राफ से समझ गए होंगे कि ये जो हमारा सेज है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत इसको नॉलेज है, बट इसको एक छोटा सा बात इतना परेशान कर रहा है कि उसका पिगटेल पीछे क्यों है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे आगे क्या होता है। He mused upon this curious case. What does he do? He mused upon this curious case. Muse का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना। ठीक है, तो ये जो हमारे सेज हैं, बुद्धिमान व्यक्ति है, ये बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं इस क्यूरियस केस को, इस प्रॉब्लम को, कि अरे ये इतना ज़्यादा सोचने लगे इस बारे में कि इनके ये चोटी पीछे क्यों है, आगे क्यों नहीं है। और फिर उन्होंने क्या किया सोच के, एंड स्वोर है स्वेयर का पास्ट टेंस। ठीक है, स्वोर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में प्रतिज्ञा ले लेना, कसम खा लेना एकदम कि हम ऐसा ही करेंगे। तो वो क्या स्वोर कर लेते हैं, एंड स्वोर ही वुड चेंज द पिगटेल्स प्लेस। क्या स्वोर कर लेते हैं कि ही विल चेंज द पिगटेल्स प्लेस। जो पिगटेल का जो जगह है, मीन्स जो उनकी जो चोटी है उसका जगह वो बदल देंगे, ऐसा वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं। एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और उसकी जगह बदल कर क्या करेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, अपने फेस पे रख लेंगे, अपने पिगटेल को। समझ रहे हैं आप? नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम। डैंगलिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब झूलते रहता है ना तो उसको हम लोग डैंगलिंग करते हैं। तो उसकी चोटी क्या है, अभी झूल रही है, तो वो क्या कहना चाह रहा है सेज, मतलब क्या सोच रहे हैं वो, कि इस पिगटेल को वो पीछे झूलने नहीं देंगे। क्या करेंगे, इस पिगटेल को आगे लाके अपने सर पे लगा लेंगे, अपने फेस पे लगा लेंगे आगे की तरफ। समझ रहे हैं? सेज ही, एंड व्हाट डज ही से, वो कहते हैं द मिस्ट्री आई हैव फाउंड आई विल टर्न मी राउंड। क्या कहते हैं कि इस रहस्य, तो उसकी चोटी क्या है, अभी झूल रही है, तो वो क्या कहना चाह रहा है सेज, मतलब क्या सोच रहे हैं वो, कि इस पिगटेल को वो पीछे झूलने नहीं देंगे। क्या करेंगे, इस पिगटेल को आगे लाके अपने सर पे लगा लेंगे, अपने फेस पे लगा लेंगे आगे की तरफ। समझ रहे हैं? सेज ही, एंड व्हाट डज ही से, वो कहते हैं द मिस्ट्री आई हैव फाउंड आई विल टर्न मी राउंड। क्या कहते हैं कि इस रहस्यमय सिचुएशन का मुझे, इस डिफिकल्ट सिचुएशन का मुझे उत्तर मिल गया है, कि इसका क्या उत्तर है, इसका क्या समाधान है, कि आई विल टर्न मी राउंड, मैं अपने आप को गोल घुमा लूंगा और मेरा सर आगे से, मतलब मेरा चेहरा आगे से पीछे चला जाएगा और मेरी चोटी पीछे से आगे आ जाएगी। ऐसा सॉल्यूशन वो निकालते हैं। ही टर्न हिम राउंड, और वो क्या करता है, खुद को गोल घुमाते हैं। बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम। अब आप बताइए, कोई अगर गोल घूम जाएगा तो क्या उसकी चोटी पीछे से आगे आ जाएगी? ऐसा होता है? बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उसकी चोटी अभी भी पीछे थी। वो जब गोल घूम भी गया तो उसका चेहरा आगे आ गया और चोटी अभी भी पीछे थी। देन राउंड एंड आउट एंड इन। अब क्या कर रहे हैं हमारे बुद्धिमान व्यक्ति, वो बार बार गोल गोल घूम रहे हैं, ये सोचकर कि कभी तो चोटी आगे आ जाएगी। एंड राउंड एंड आउट एंड इन, ऑल डे द पजल सेज डिड स्पिन। ऑल डे मीन्स पूरे दिन, द पजल सेज, पजल मतलब कंफ्यूजन में, अरे अब क्या करें, ये आगे क्यों नहीं आ रही है, ऐसे सोच कर वो पूरे दिन क्या करते रहे, स्पिन करते रहे मतलब रोटेट करते रहे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, ऐसे। समझ रहे हैं आप? इन वेन होता है जब हम कोई चीज़ बहुत ही मेहनत से करते हैं और वो चीज़ बर्बाद हो जाए, उसको कहते हैं बेकार हो जाना। उसी का इन वेन का मतलब क्या है, वही है। इन वेन इन मैटर नॉट अ पिन, थोड़ा भी फर्क, नॉट इवन लाइक अ पिन, थोड़ा भी फर्क उनके गोल गोल घूमने से नहीं पड़ा। और द पिगटेल हंग बिहाइंड हिम, और अभी भी पिगटेल कहाँ है, उनके पीछे ही है। अब वो आगे क्या करते हैं, एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट, वो अभी भी क्या कर रहे हैं। अब हम 5th पैराग्राफ में आ गए हैं। एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट, राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट, वो अभी भी क्या कर रहे हैं। अब हम 5th पैराग्राफ में आ गए हैं। एंड राइट एंड लेफ्ट
एंड राउंड अबाउट, वो अभी भी कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राउंड घूम रहे हैं। एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, एंड इन एंड आउट, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, कैसे भी घूम घूम कर देख रहे हैं। ही टर्न बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट, और वो कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ कभी ऊपर कभी नीचे घूम रहे हैं। और पिगटेल क्या है, अभी भी वहीं पे मजबूती से टिका हुआ है। कहाँ टिका हुआ है? उनके सर के पीछे। पिगटेल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट हंग स्टेडीली बिहाइंड हिम, उनके पीछे अभी भी क्या है? बहुत ही स्टेडली मीन्स बहुत ही व्यवस्थित रूप से, बिना हिले डुले, अपना एकदम अच्छे से, जैसे पिगटेल रहता है वैसे ही है। पिगटेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक का मतलब होता है कि स्लो हो जाना, मीन्स रुक जाना कोई चीज। तो बोल रहा है उनके जो एफर्ट्स थे, एफर्ट्स का मतलब है प्रयास, बहुत सारे प्रयास जो वो कर रहे हैं। एंड दो का मतलब है जबकि वो बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक, उनका जो एफर्ट्स है वो बिल्कुल भी थमता नहीं है, रुकता नहीं है, स्लो नहीं होता है। एंड दो ही ट्विस्ट एंड ट्वर्ल एंड ट्रैक, जबकि वो बहुत ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट भी क्या है? ट्विस्ट का मतलब होता है मरोड़ना, घूमना। ट्विस्ट करते हैं, ट्वर्ल करते हैं, स्पाइरल जैसे घूमता है ना उस तरह से, कभी गोल घूम रहे हैं, कभी ऐसे घूम रहे हैं, वैसे घूम रहे हैं। तो ट्विस्ट, ट्वर्ल, ट्रैक, ये तीनों शब्द क्या है? किसी चीज के घूमने का प्रतीक है। ठीक है। अल्लास मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ही दुख से, बहुत ही परेशान होकर के बोलते हैं तो हम लोग शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्लास स्टिल फेथफुल टू हिज बैक, उसकी चोटी क्या है अभी भी? स्टिल फेथफुल टू हिज बैक, मतलब उसके जो पीछे का पोर्शन है, बॉडी के पीछे का पोर्शन, सर जो है उसका, वहीं पे ही टिका रहता है। वो जरा भी अपने फेथफुलनेस से हिलता नहीं है, मतलब उसी के अपने व्यवस्थित रूप में ही रहता है। स्टिल फेथफुल टू हिज बैक द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम, अभी भी पिगटेल कहाँ है? उसके पीछे ही है। उसकी चोटी क्या है अभी भी? स्टिल फेथफुल टू हिज बैक, मतलब उसके जो पीछे का पोर्शन है, बॉडी के पीछे का पोर्शन, सर जो है उसका, वहीं पे ही टिका रहता है। वो जरा भी अपने फेथफुलनेस से हिलता नहीं है, मतलब उसी के अपने व्यवस्थित रूप में ही रहता है। स्टिल फेथफुल टू हिज बैक द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम, अभी भी पिगटेल कहाँ है? उसके पीछे ही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट पैराग्राफ था। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सेज को जो कहा गया है, सेज मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को जो कहा गया है कि वो बहुत बुद्धिमान, बहुत लर्नेड थे, बहुत समझदार थे। आप देख सकते हैं कि वो कितने लर्नेड और कितने समझदार थे, क्योंकि आखिर में इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या हुआ? उनकी चोटी पीछे से आगे नहीं आई। और आप उनके कंफ्यूजन, उनकी परेशानी, उनके इस पिक्चर में बहुत ही अच्छे से, उनकी चोटी पीछे से आगे नहीं आई और आप उनके कंफ्यूजन, उनकी परेशानी, उनके इस पिक्चर में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। So students, I hope I have made myself clear to you all and I hope you understood this. Please try to read this again and again so that you can understand it in a better way, and I will make you write the answers of the questions given below. But Now here I finish the explanation pigtail. Let's move to the exercises. Answer the questions. Exercise A. Students, first of all you make a title page and then after write the exercise A and with the black pen. Make sentences with the following words, using them first as adverbs and then as adjectives. टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है। एक्सरसाइज ए में जो दिया है इसमें आपको क्या करना है? आपने सेंटेंसेस बनाने
इन वर्ड्स को यूज करके। पहले आप उसको एग्जेक्टिव के साथ बनाएंगे और फिर आप किसके साथ बनाएंगे, फिर उसको आप बनाएंगे किसके साथ, एडवर्ब के साथ। शी हैज टू वर्क। देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है राउंड। अब हमने अपने सेंटेंस में राउंड वर्ड को यूज करना है एज ए एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब के साथ हमने उसे यूज करना, तो यानी 2 सेंटेंस बनेंगे हमें। तो आप देखेंगे जब मैंने एक्सरसाइज ए का जो आपको पिक्चर भेजूंगी, मैंने इसी वीडियो में ही दे दी है पिक्चर तो, लेकिन अगर वो समझ में ना आए तो मैं दोबारा आपको सेंड कर दूंगी। तो आप ये देखेंगे कि उसमें मैंने 2 सेंटेंस दिए। तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस आपने क्या करना है, लाइन खींचनी है, जैसे वर्ड एंड सेंटेंसेस लिखते हैं हम, और पहले राउंड लिखना है और राउंड के बाद पहला सेंटेंस लिखेंगे फिर दूसरा लिखेंगे, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ। शी हैज़ टू वर्क राउंड द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। शी हैज़ अ परफेक्टली राउंड फेस। पहला सेंटेंस था शी हैज़ टू वर्क, राउंड को अंडरलाइन कर दीजिएगा या ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर दी। द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। दूसरा सेंटेंस हम क्या यूज कर रहे हैं, एडवर्ब, और एडवर्ब की क्या पहचान है, एल वाई से। शी हैज अ परफेक्टली राउंड फेस। दूसरा सेंटेंस है शी हैज अ परफेक्टली राउंड फेस। नंबर 2 है स्टिल। द फायर आउटसाइड द कैंप इज स्टिल बर्निंग। स्टिल, वाटर रन डीप। नंबर 1 है द फायर आउटसाइड द कैंप इज स्टिल बर्निंग, स्टिल वाटर्स रन डीप। ये मैंने 2 सेंटेंस बना दिए, ठीक है, 1 और 2 फिनिश हो गया। नंबर 3 है फास्ट। ही वॉज इन अ रश एंड स्पोक फास्ट। नंबर 2 सेंटेंस ही इज fascinated by the first care. Number 4, curiously curious. Are you a footballer? He asked curiously. He is curious person. Number 5 है vainly. She shouted vainly at the mischievous boys. He dived forward in the vain attempt to catch the ball. Number 6, head down. Put the badge down and make yourself comfortable. The signal was down and the train was approaching. Now here I finish number 6. Now if I finish exercise A, make a heading exercise B. Now exercise B, find the antonym in the poem for each of the expression given below. Students make a 2 headings. Number 1 antonym, number 2 word and antonym. Make a 2 heading. Number 1 words, number 2 एंटोनियम। नंबर 1 अगली। यहाँ आपसे उलट पूछा गया है, अगली का क्या बनेगा, हैंडसम। तो आपने क्या लिखना है, वर्ड्स में अगली लिखना है और एंटोनियम में हैंडसम लिखना है। नंबर 2 है इन फ्रंट ऑफ, इसका एंटोनियम है बिहाइंड। नंबर 3 देखिए वाज हैप्पी, इसका है सॉरोव्ड। नंबर 4 है डिसलॉयल और इसका है फेथफुल। नंबर 1 अगली बदसूरत, उसका हो गया खूबसूरत। बिहाइंड का पीछे, बिहाइंड और उसका पूछा गया इन फ्रंट ऑफ का क्या है, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड पीछे। और नंबर 3 है वाज हैप्पी, खुश होना। तो क्या है, सॉरो तकलीफ में होना, मुश्किल में होना। और फेथ डिसलॉयल का है वफादार और वफादार ना होना, ठीक है।
यहाँ आपने काम बहुत सफाई से करना है। मैं ये देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफाई से काम नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज सी के ऊपर। मेक अ हेडिंग एक्सरसाइज सी ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग। अब आपने जो भी एक्सप्लेनेशन सुनी उसमें आपको समझ में आ गया है कि एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया। तो आपने क्या क्या करना है, अपना उस एक्सप्लेनेशन को सामने रख के बेसिक ऑफ योर रीडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट मेड द सेज अनहैप्पी एंड व्हाट डज द सेज मीन व्हेन ही सेज दैट ही हैज फाउंड द मिस्ट्री। नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी बात थी जो उसे नाखुश करती थी, यानी वो अनहैप्पी रहता था। तो आपको पता है कि वो क्या चाहता था, क्या चाहता था, सेज क्या चाहता था, सेज की क्या परेशानी थी, ये आपको पता है। तो इसका आंसर है द सेज वाज अनहैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट हिज अट्रैक्टिव पिक्टेल always hung behind him. He means that he has solved the problem of how to get his pigtail to hang in front of him and not behind him. वो नहीं चाहता था कि उसकी पिक्टेल पीछे रहे, वो चाहता था उसकी ब्यूटीफुल पिक्टेल उसके सामने रहे। राइट द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, what is your opinion of the solution which the sage found to his problem and what does it tell you about the sage? अब आप देखिए कि आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है। आप ये बताइए कि सेज ने जो किया वो आपकी राय में दुरुस्त था, ये आपको बताना है अपने वर्ड्स के अंदर। तो इसका आंसर है यू शुड राइट इट योर सेल्फ first of all and then after you see in the answer sheet. ओके, आपने पहले अपना आंसर लिखना है खुद से और फिर उसके बाद उसको क्या करना है, मेरे आंसर से मैच करना है। ये मैं बार बार आपको बोलती हूँ। तो इसका आंसर है द सेज solution is not only funny but also the foolish because he doesn't realize that if he turns his pigtail will turn with him and thus the always remain behind him. This tells us that the sage was not very bright या very intelligent. Question number 3. Question number 3. Write the question number 3. Why is the last stanza यानी आखिरी पैराग्राफ में in the present tense do you think the poet has intentionally chosen a sage for this poem? Explain it. तो स्टूडेंट्स इसको आप समझ लीजिए, इसको आपने लिखना नहीं है, क्वेश्चन 1 और 2 ही करना है। इसका बहुत लॉन्ग आंसर है तो आप इसको नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दे दिया है लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना नहीं है, आपने उसको रीड कर लेना है, समझ लेना है, ओरल याद कर लेना है, ठीक है। नंबर 4, राइट नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक दिस पोएम इनॉर्मल। आपको मज़ाहिया पोएम में जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी एक लिस्ट बना लेनी है, यानी आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फुलिश मैन एज ए सेज। पहला तो ये कि सेज जो है वो फुलिश मैन था। नंबर 2, द सेज वेयरिंग अ पिगटेल। नंबर 3, द सेज बीइंग सैड अबाउट हिज पिगटेल हैंगिंग बिहाइंड हिम। नंबर 4, द सेज वेयरिंग हिज पिगटेल टू हंग in front of him. Number E, number 5, the sage going to round and round in the circle of all day and the being surprised that his pigtail is still hanging behind him. ये जो 5 मैंने आपको सेंटेंस लिखवाए हैं, ये 5 सेंटेंस ये बताते हैं और ये हमें हंसाते भी हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने इनको डिटेल में बता दिया 1 बाय 1, तो आपने इनको लिखना है। नंबर आ जाइए नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 पर आइए। नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए, द डेज ऑफ योर। नंबर बी, इज मैटर्ड नॉट अप इन। अब आपने इसका आंसर देना है।
नंबर 1 का आंसर है द डेज ऑफ यॉन द लॉन्ग टाइम्स अगो मीन ईयर अगो इन द एशियन टाइम्स। एंड नंबर बी का है इट मैटर्ड नॉट अ पिन, इट डिडंट मैटर एट ऑल, इट मेड नो डिफरेंस एट ऑल। इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको ये बताना है कि ये दो अल्फाज क्यों यूज हुए हैं। तो पहला जो मैटर्ड है वो नॉट पिन के लिए यूज नहीं हुआ है बल्कि मैटर टू ऑल के लिए हुआ है, और नंबर 1 के अंदर लॉन्ग टाइम अगो के लिए हुआ है। अच्छा, एक्सरसाइज डी के अंदर आपने क्या करना है, गिव अ डिफरेंट टाइटल टू दिस पोएम। अब आपने देखा यहाँ पर 28 यूनिट का नाम है द पिगटेल, तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा नाम भी दे सकते हैं खुद से। एक्सरसाइज ई के ऊपर आइए, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है, इसको जरा तवज्जो से पढ़ना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड री राइट। नंबर 1 है री राइट द फर्स्ट स्टेंजा, यानी पहला आपने स्टेंजा लेना है पोएम का, पहला स्टेंजा लेना है ऑफ द पोएम एंड विथ ऑल द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। बी केयरफुल टू मेक एनी अदर चेंज दैट माइट बी नेसेसरी। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेंजा को लेना है और उसमें से क्या चूज करना है, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को चूज करना है। देखिए यहाँ पर आंसर में देखिए, देयर लिव्स अ सेज दीज डेज। नंबर 1 में लिव, ये उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड ही अ हैंडसम पिगटेल वियर्स but the wonders much and sorrows more because it hang behind him। अब हमने फर्स्ट पैराग्राफ के ले लिए। अब आ जाइए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई विल रन माई मी राउंड, ही टर्न्ड हिम राउंड। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक्टिविटी है, इसे आप अपनी सी कॉपी में करिएगा और सी कॉपी में आप देखिएगा कि इसके आंसर्स क्या क्या पूछे गए। नंबर 1 में आपने क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को तलाश करना है। नंबर 2 में री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस करने। नंबर 3 में री राइट द फॉलोइंग लाइन यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को लिखना है। सिंपल पास्ट टेंस को कहाँ कहाँ यूज किया गया है, तो देखिए आंसर आपके पास सारे हैं, आपने उसको केयरफुली करना है। आप देखिए इसमें है ना, पूरी आपसे ग्रामर पूछी गई है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर हो सके, अगर नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ दीजिएगा, मैं फिर क्लास में इसको इस एक्टिविटी को करवा दूंगी, क्योंकि मुझे खुद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। मैंने समझा तो दिया, आंसर भी दे दिए, लेकिन कई सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएंगे। तो मैं कह रही हूँ आप एक्सरसाइज ए, बी और सी कर लीजिएगा। और डी तो बहुत ही आसान है, उसमें तो आपको टाइटल देना है। और ई जो एक्सरसाइज है उसे आपने एक्टिविटी को, अगर नहीं आ रही है समझ में, क्योंकि मैंने इसको कहा है कि एक्सरसाइज इसको आपने सी कॉपी में करना है। अगर आती है तो कर लीजिए, नहीं आ रही समझ में आपको तो इसको फिर हम क्लास में करवा देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए एक्सरसाइज एफ, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने पहले ही समझा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, तो आपने इसमें क्या करना है, इसको अपनी ग्रामर की कॉपी में करना है, सही ना, इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में करना है एक्सरसाइज एफ को। और ये बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे कि आपने पहले सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है मैंने आंसर दिए हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। नंबर जी के अंदर अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जी को आप क्या करें, नहीं करेंगे, जी को आप नहीं करेंगे। नंबर एच को देखिए, आइडेंटिफाई नॉन नेटिव वर्ब। अच्छा, जी और एच एक्सरसाइज आप छोड़ दें। नाउ स्टूडेंट्स, हियर्स आई फिनिश यूनिट नंबर 28। डू इट योर वर्क वेरी केयरफुली, वेरी नीटली। देखिए आपने अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत ही नीटली क्लीनली करना है और समझ के करना है। मैंने जो आपको एक्सरसाइजेस छुड़वाई हैं वो इंशाल्लाह मैं क्लास में करवा दूंगी, क्योंकि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है। पोएम तो वैसे भी पोम तो होती ही डिफ़िकल्ट है।
अच्छे स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा दिए हैं, इसे आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई सी यू, आई मिस यू, आई लव यू। वी विल मीट इंशाल्लाह वेरी सून इन स्कूल। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।